श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह, मेरा परिवार मेरे होने तो पहला की गल संतोख नगर रहा करते सन। एक रात घर में लुटेरे आ गए
कुछ जी बाहर सन ते कुछ अंदर सन। उन्होंने पता सी कि 4 सरदार रहते हैं इत्थे। 3 जाने मेरे दादा जी, मेरे पिता जी ते मेरे चाचा जी उन्होंने बोले सन। बाकी सारे परिवार के मैंबर भी ते गला उत्ते तलवार रखिया हुई। पर मेरे ताया जी प्रधान अवतार सिंह जी वो ते उन्होंने 2 बच्चे मेरे बड़े भैन भरा एक कमरे दे विच लुके हुए सन। मंजे के नीचे भैन भरा लुके सन ते लुटेरे कई जान। चौथा सरदार किथे है देख नहीं रहा। कमरा उन्होंने सामने सी पर उन्होंने वो कमरा नहीं दिखा। प्रधान अवतार सिंह ने अरदास की है सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह के चरणों के विच कि हे सच्चे पातशाह रखिया करो, इस भयानक समय में रखिया करो। भगवती की माला की अरदास की है। साध संगत जी बिरथा कदे ना हो गई जन की अरदास। उसे वेले साडे लागे एक बीबी रिहा करदी सी। उसको सुपने दे विच सतगुरु जगजीत सिंह के दर्शन हो रहे ने। सतगुरु जगजीत सिंह जी बड़ी तेजी नाल गड्डियां च जा रहे ने ते बीबी अर्ज करदी है हे सच्चे पातशाह मेरे घर चरण पाओ। सच्चे पातशाह कहने लगे नहीं बीबी मेरे सिख दे घर भाना मत रहा बिरथा कदे ना हो गई सन की अरदास। बिरथा कदे ना हो गई सन की अरदास। बिरथा कदे ना हो गई सन की अरदास। बिरथा नानक चोर गोविंद का पूर्ण गुणदास। परम सत्कारयोग साध संगत जी सब आपो अपनी रसना को पवित्र करिए ते सब गज के आखिए धन श्री सतगुरु सिंह सच्चे पातशाह। गुरबाणी की टेक रही है बिरथा कदे ना होगी जन की अरदास।
ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਪੇਟੀ, ਵੱਡੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਾਣ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆ ਵੀ, ਇਹ ਢਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਟੇ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢਾਲ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਢਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਚੇ ਚੰਨ ਕੀ ਮੈਂ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਚੇ ਚੰਨ ਕੀ ਮੈਂ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਹੋ ਕੇ ਟਟਿਆ ਮੱਥਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ लाल सिंह सोचे चंद की चढ़ा लिया है, खो के कटैना मत्था सूरज ना ला लिया है। सोचता है
ये की मैं कर बैठा, भजदा फिरदा है कदी किदे कोल ते कदी किसे कोल, मेरी बख्शबंदी कराओ, बख्शिश कराओ। ये की हो गया? किसे महापुरुष को जाता है ते अगो महापुरुष कहने लगे जिहड़ी सरकार ने तो कह के आया उन्होंने कोल जाके कहे कि इंज नहीं ते इंज कर लो। ते फिर अगो लाल सिंह कहने लगा कि इसका हल दसो। फिर अगो महापुरुष कहने लगा कि हल वो आप ही है, हरिए अकाल पुरख आप ही हल है जड़ा आप हार के अपने भक्तों को जिता सकता है। कहने लगे सात संगत बुलाओ, नित्यनेम करवाओ, अरदास करवाओ, चौकी धोती है, पवित्र की है, कड़ाह प्रसाद की देग बनाई है। सात संगत को बुलाया, नित्यनेम की इंज कह के जिवें नित्यनेम की वर्णी करवान लगे ने। सात संगत ने सब ने मिलके गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के चरणों में जोदड़ी की है कि हे सच्चे पातशाह, लाल सिंह तेरे चरणों में अरदास कराउंदा है कि सवेरे मेरी ढाल भी लाज रखियो, पेपर भी तेरे नाल है ते पास भी तू ही करना है। जदों आस राइटर होवे ना ते फिर वो रखदा है जेडे नाम जपते ने ना। एक पंछी सी दरखत ते बैठा सी ते ओनू मारन वास्ते एक शिकारी ने कमान दे तीर चढ़ा लिया। पक्षी सोचे कि हुण इन्हें मैनू मार देना जे मैं इत्थे बैठा रहा। उठ जान की बात सुजान कहो, काट कमान कियो सर रे, कि जे मैं इत्थे बैठा हुण इन्हें मैनू मार देना, मैनू उड़ जाना चाहिए। ते फिर अगे की वो तेरे ऊपर बाज फिरे, जे इत्थे बैठा ते इन्हें मार देना, ऊपर उठ्या ते बाज ने झपट लेना, ते फिर की उठ जान की बात सुजान कहो, काट कमान की किया सर रे, तो तेरे ऊपर ऊपर बाज फिरे, अब कौन सहाई बिना हर रे। उन हर दे बिना, सच्चे पातशाह दे बिना कौन सहाई है। अरदास करता है, हे सच्चे पातशाह, नीचे इन्हें मार देना ते ऊपर उन्हें फड़ लेना, मेरी रक्षा करो, लाज रखो। ते अगे की होया, हेरू के भाओ भुजंग दसियो, शिकारी दे पैरां ते सप लड़ गया। हेरू के भाओ भुजंग दसियो, छूट कमान लगा फर रे। हुण ओदे पैर ते डंग वज्जिया ते ओ थल्ले डिग गया, ते जेड़ा ओने कमान तीर ते चढ़ाया सी ओ जाके बाज नूं वज गया। बाज भी मर गया, वो शिकारी भी मर गया। ते हुण पक्षी बैठा सोचता है, समझाए रही इन कपटी मन को, जिन नाम जपियो तिसको काहू डर रे। शर्त एक दा होके रहना, एक अगे अरदास करनी है। सच्चे पातशाह गुरबाणी लिखते ने, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटी है जम की फासा। लाल सिंह ने अरदास की है, हे सच्चे पातशाह, पेपर भी तेरे नाल है, पास भी तू ही करना है। एक वैद आया सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह कोले, कहता है मेरी दवाई बड़ी खतरनाक है, कोई बंदे को संगल वज्जिया होवे ना, मैं दवाई दे देवां तो ठीक हो जाएगा, उसका दिमाग सेट हो जाएगा। सतगुरु जगजीत सिंह ने सच्चे पातशाह ने बंदा बुलाया, बंदा बिल्कुल ठीक सी करता ते एक ताई दोरे पैंदे सन। दवाई दी उन्हें, वो दवाई पुट्ठी पै गई तो उन्हें संगल बन के रखना पिया। वो फिर कहता मेरे को एक होर दवाई है, जिहदी कल्ले कुड़ियां होंदियां होन ना, मैं दवाई देदा ते ओह मुंडा हो जाता है। सच्चे पातशाह एक बंदा बुलाया, उन्होंने फिर दवाई दी, उन्होंने फिर कुड़ी हो गई। उन्होंने वैद रशपाल सिंह सेवक को ले जाता है, ते कहता कि जो भी कर रहा है पुट्ठा ही पई जा रहा है, हो की रहा है। तब रशपाल सिंह सेवक कहने लगे कि तू दसवंध कटदा अपनी कमाई चो, पर तू अपनी गल दे विच गुरु दी कृपा नहीं रखदा। जा जाके कहो कि मेरी दवाई विच असर ओना चेर है
जिन्ना चेर तेरी नजर मेरे ते है। एक ऊपर जिस जन की आशा, जिसकी कटी है जम की फासा। लाल सिंह ने अरदास करवाई है, सारी रात सोचता रहा है, हे मना क्यों नहीं मैं उत्थे कह दिता जिद्दां तुहाडी रजा। सवेर हुई है, आसा दी वार दा भोग पिया है, हाथ भी कंबण ते पैर भी कंबण, ढाल लेके पहुंच गया। वार दा भोग पिया, सतगुरु ने ढाल रखवा ली सामने। आसन ते बैठे ने, नाल दे सिंह नूं आखे आलम सिंघा फड़ बंदूक ते लगा निशाना, देखिए नी ढाल च कितना जोर है, गोली रोकदी कि नहीं। आलम सिंह ने फड़ी बंदूक, 7 वजन आख्या, 2-3 निशाने कट मारने, सारे खुंज गए, सारे मिस हो गए। सतगुरु जी कहने लगे कि निशाना ही नहीं लगता पिया। उदों भी सिख बड़े वधिया सन नाल दे, कहंदे जी ढाल बच किवें जावे। सिख उठिया, सतगुरु जी ये को नहीं लगा, तुसीं आप बंदूक फड़ो, निशाना मारो। बड़ी कृपा वाले सिख होंदे सन उदों भी। सतगुरु जी उठे ने, बंदूक फड़ी है, निशाना लगाया, 3-4 मिनट निशाना लगाई रखा, गोली नहीं मारी है, निशाना लगाया। एक सतगुरु है जिहड़ा आप अपने भक्तां नूं अपने पेपर चों ही पास करदा। बंदूक नीचे रख दी, ना दे सिख कहने लगे की होया सच्चे पातशाह बंदूक रख दी है। कहंदे की करा, कहन लगे मैं गोली किथे मारा, हैरान हां ख्याल दे, मैं गोली किथे मारा, हैरान हां ख्याल दे। नौवे पातशाह ने हाथ रखे हुए ने ढाल पे, जिस सतगुर मेरे सभा दे विच लाज रख लई, 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 लाज रख लई, मेरी आवाज़ रख लई, लाज रख लई, मेरा रख लई, लाज रख लई, मेरा रख लई, लाज रख लई, मेरा रख लई, सतगुर मेरे सभा दे विच लाज 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 रख लई। सतगुरु सच्चे पातशाह ने लाज रख ली है, चरना च जाके डिगया, हे सच्चे पातशाह मेरे गुनाह बख्श दो, मैं बहुत गुनाही हां। ये ऐसा दर है जिथे गुनाह बख्श दिते जाते हैं। कहते हैं ना 100 दर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए, इत्थे सब गुनाह बख्शे जाते हैं। मैं सुनिए दर तेरे ते गुनाही बख्शे मेरे, मैं सुनिए दर तेरे ते गुनाही बख्शे
मुहावे वाले सतगुरु प्रताप जी ने गुरु ना मन्या कर आखे एटे दे बाल है मैं गुरु हरि जी दे मेरे को सेख खां जुगा जुगांदरा तो सेख खां एदी बाल है मैं मत्था जो टेका कला बड़ी संपूर्ण सी एक लख इस लोग जो सी दूजी लख दरगाह चलदी सी समा आया सोचे चल दरगाह दे हाल देख आइए बिरती टकाई है दरगाह पहुंचे आवाज मारी है बुआ बोलो केसर किली आया ते अगो आवाज आई केसर किली होएगा घरे इथे गुरु प्रताप जी के गुच्छे दी चाबियां चलदियां ने अच्छा गुरु प्रताप जी हां ते होर कौन सुरत टकाई वापस आया घूम के जाके सतगुरु प्रताप जी ने मत्था टेकिया फिर घूम के आया फिर मत्था टेकिया फिर घूम के आया फिर मत्था टेकिया अगो सतगुरु जी कहने लगे हुन बस कर टेक लिया ते कहने लगा नहीं जितना पिछला रहता सब पूरा करना है तुसी खड़े रहो तुसी टिकाई लो मैं टेकी जावां ते ए कहंदा है गुनाह ही बख्शे आने गुनाही बख्शे मस्तानगढ़ वाले किसी को सतगुरु जगजीत सिंह नाल नाराज हो गए ते मस्तानगढ़ वाली सड़क ते ना सतगुरु जी अपनी गड्डियां ते आ रहे सन ते रस्ते च भगवान सिंह अपनी घर दी नाल साइकिल ते जा रहा सी सतगुरु ने देखा भगवान सिंह जा रहा है गड्डी रोकी है थल्ले उतरे ने बीबी ने मत्था टेकिया भगवान सिंह ने मुंह दूए पासे कर लिया नाराज सी बीबी ने मत्था टेक लिया ते अगो सतगुरु जगजीत सिंह जी आखन लगे भगवान सिंह जदों तेरा कोई अपना तेरे तो मुंह फेरेगा ना तेनू फेर पता लगेगा जदों तेरा अपना तेरे तो कोई मुंह फेरेगा बीबी सियाणी सी बख्श दो बोला छड़िया बख्श दो अगो सतगुरु जी कहने लगे बीबी तेनू पता कितना दुख लगता है जदों कोई अपना मुंह फेर लवे प्यो इधर खड़ा है पुत्र मुंह दूए पासे कर लेन दुख पता कितना होता है बख्श दो बोला छड़िया बख्श दो करे गए ने कोई गल नहीं कोई बात नहीं सब लड़ पे कितने सो इतना टाइम हो गया सी ये वो सब लड़ाई होगी मंजी ते बैठे भगवान सिंह सोचे कि हजे ऐसा केड़ा तीर सट तक करे आंदे कलेश पै गया थोड़े दिन बाद सतगुरु जी फिर जा रहे सन किते ते भगवान सिंह अगे जाके खलो गया जिधरली साइड सतगुरु जी बैठे सन उधरली साइड खलो गया जाके ते आखन लगा कि हे सच्चे पातशाह बाहर आओ ते सतगुरु जी गड्डी दा शीशा थल्ले कीता ते कहन लगे मैनू पता है हुण तेरा मेरे नाल बोलण नूं जी करदा होना अगो कहन लगा कि तुसी बाहर आओ मैं बख्शवती कराउणी है तुहाडा की पता मैं बख्शिश मंगा तुसी गड्डी भजा लो पाशे कहन लगे नहीं बख्शिश मंगनी है सतगुरु राम सिंह दा दर है बख्शिश दा भंडार है दिलों मंग ले जो दिलों मंगेगा ना ते आकाश विच भी फुहारे छुट पैणगे बख्शिशां दे गुनाही बख्शे सामे 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 एक सिख सतगुरु प्रताप सिंह जी के कोल किसी दूसरे सिख की बख्शबंदी करवाना आया
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੂੰ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-3 ਖੁੰਡੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 2 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੋਲ ਝਕਾਰਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਈ ਬਾਈ ਲੀਕ ਹੈ, ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਦੋ ਨੂੰ, ਜਾ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ, ਲੀਕ ਤੇ ਢਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੱਪਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੱਸੋ, ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਭ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਉਠਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਆ ਪਾਪ ਤੂੰ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਆ ਪਾਪ ਤੂੰ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਭ ਸੁਣਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਨ ਮੇਰੇ, 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 ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।